We're going to start chapter number 12, atom. Atom. J.J. Thomson has first studied about the atom, and Thomson says that in 1897 the atom consists that of negative charge particles. Since atom is electrically neutral, so that have the same number of positive charge, so that means number of negative charge and number of positive charge are equal, so that it is electrically neutral. And J.J. Thomson also stated that entire positive charge of the atom is distributed in a solid sphere. That means it is a structure of the atom is like a sphere, like this. So entire positive charge and negative charge, that is same, so that he stated that electrically neutral. The atom is electrically neutral, and it is distributed in the hollow sphere, so that we can say it is a sphere, then its volume is 4/3 pi r cube, right? Then after this success of the Thomson's atomic model, some more theories were given, but there were the demerits of the Thomson's atomic model. And Thomson's, what is the demerits of the Thomson's model? So this model could not explain the scattering of alpha particle. First demerit, Thomson's model cannot explain about the alpha particle, scattering of the alpha particle. This model also could not explain about the spectrum of hydrogen. That means hydrogen have a spectrum, find a spectrum, Walmer, Paschen, etc., etc. So this was the demerits of the Thomson's model. That's why the Rutherford's alpha scattering is given. So in the experiment of alpha scattering of the Rutherford has taken a lead box in which a radioactive substance is kept, and between them a thin gold foil and a screen. So when the alpha particles are scattered, it was seen on the screen. So he conclude that, who? The Rutherford. Suppose this is a atom and this positive charge, so the particles entered like this, okay, and some are returned back, some passes straight. So this is what? Nucleus. This is a nucleus. So look here, these are the alpha particles which are scattered. So they scattered from three way. Number one, most of the alpha particles goes straight after the penetrating the gold foil. They passes from this gold foil, and most of the alpha particle passes straight. And some of the alpha particle are scattered, get scattered at an acute angle, and some of the alpha particles are at the obtuse angles from this. So he made a conclusion. Rutherford made conclusion. First conclusion he made that since most of the alpha particle passes straight, hence most of the part of atom inside is hollow. देखो कोई भी चीज यहाँ से टकरा कर आ रही वापस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भाग है वो कैसा है? एम्प्टी है, हॉलो है, खोखला है, खाली है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला इसमें कि एंटायर चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट अ सेंटर, मतलब होल मास इज कंसंट्रेट एट अ सेंटर, पूरा का पूरा उनका एक केंद्र पर रहता है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इसके लिए। और फिर उन्होंने कहा कि दे हैव अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स, राइट, दैट्स व्हाई दे रिटर्न बैक. So this was the conclusion of the Rutherford's model. लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जब उसमें स्कैटरिंग हुई गोल्ड फाइल को पार करती है, कुछ सीधे निकल गए, कुछ एक्यूट एंगल पर निकलते हैं और कुछ राइट एंगल पर चले गए. तो कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई कुछ टकरा कर वापस आ गए. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर टकरा कर वापस आ रहे हैं मतलब पार्ट कैसा है, एटम का खोखला है, खाली है, अंदर से हॉलो है, ये उन्होंने निकाले. उसके बाद उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने कहा ये पैरामीटर,
ये जो ये लिया स्कैटरिंग में है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द पैरामीटर. सो he says the size of the atom of the nucleus can be estimated by the following ways. तो सबसे पहले अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब उसके लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² के बराबर होगी. और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इस पार्टिकल्स के लिए प्रोवाइड होगी बाय कूलॉम्स लॉ. इन्होंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन सर q1 q2 दैट इज अल्फा पार्टिकल Ze एंड द charge is on 2Ze into R0 we can say. So from here we can find the closest or we can say the smallest approach of the alpha particle. If we cross multiply from here, so R0 is equal to, we can derive here 1/4 pi epsilon, right, into 2 into 2, this cross multiply it will become 4, right, Z into Z will become Z and E into E is a E square upon mv square. So this is called the closest path of the alpha particle or the closest radius of the alpha particle, right. How we have find it? Once again see that 1/2 mv square is equal to Coulomb's inverse square law into 2e into Ze upon R0. As I cross multiply this, R is called the radius or the closest approach. तो R0 is equal to, ये अपन ने निकाला अभी 1/4 pi epsilon naught के, right. As I cross multiply 4Ze square upon में mv square. So by using this formula we can find the closest approach of the particle. Now here we will talk about the Rutherford's model of atom. सो जस्ट वी हैव डन इन द प्रीवियस. देखो अभी हमने निकाला था रदरफोर्ड का मॉडल क्या कह रहा है. तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यू मूव कर रहे हैं. अगर मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा बेटा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv² अपॉन r एंड इज इक्वल टू बाई सेम कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो अगर हम उससे देखेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जाएंगे 1/2 क्या आ जाएगा मेरे पास mv स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई, राइट, इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड अल्फा पार्टिकल. तो E इंटू ई दैट इज -e². इफ आई विल टेक कॉमन फ्रॉम ईयर 1/2 पुट करेंगे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन E² अपॉन 2r -e² अपॉन r. 2 LCM will be there 2r, right. So 2 multiply by 1 it will be 1e square. So total energy of this have 1/4 pi ln into e² upon 2r. Now what are the drawback? Here some drawback. रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक रहे हैं और वो दो मेन ड्रॉबैक रहे हैं. सबसे पहला ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वेदर एटम आपका स्टेबल है और अनस्टेबल है. तो इसको एक्सप्लेन करने में वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सेकंड है दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया था. तो रदरफोर्ड का मॉडल जो था यहाँ पर ये दो ड्रॉबैक देता है. इसके बाद हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये आपके लिए बोहर्स मॉडल. क्लास 12 CBSE के लिए बोहर का मॉडल बहुत एक्सप्लेन है. तो BOHAR बोहर्स मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, और ये 1913 में इन्होंने दिया था. ओके, नील बोहर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी की बेस पर ये दिया था और इन्होंने अपने पॉस्टुलेट दिए थे. और उन पॉस्टुलेट में सबसे पहला पॉस्टुलेट यहाँ पर निकल कर आया कि इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग इन एनी एटम अराउंड रिवॉल्विंग है ना, घूम रहे हैं नहीं, घूमते हैं. किन में घूमते हैं? एक निश्चित ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं. सपोज पहला सेल दूसरा सेल, तो रिवॉल्विंग नहीं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. और इन्हीं का नाम होता है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट और इन्हें कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट. नंबर 2 इन्होंने दिया था, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट विच आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ
NH अपान 2 पाई। क्या कहा था इन्होंने कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो मूव कर रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट में, NH अपान 2 पाई में, और ये NH अपान 2 पाई क्या है, इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू L, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, और H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लांक्स का कांस्टेंट है। तो ये आपका जो है ना, ये L क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम, जिसको 11th में हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो NH अपान 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल, NH अपान 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल MV स्क्वायर, करेक्ट, सॉरी MVR इनटू इज इक्वल टू, और वी कैन राइट इज इक्वल टू कैपिटल L में मूव करते हैं। फिर इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में कहा बोर ने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडरगोज द ट्रांजिट फ्रॉम upper orbit of higher energy level to the lower orbit of lower energy level, the EM wave, electromagnetic wave जो है वो क्या होती है, emit होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर से लोअर लेवल में आता है, क्या कहा था इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो इमिट करता है। तो इन्होंने बताया कि जो इमिट हो रहा है वो EN EP इज इक्वल टू H न्यू, या हम इसे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इनिशियली माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल, H न्यू, राइट है ना। तो ये H न्यू वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है। और इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो MV स्क्वायर अपान R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ZE स्क्वायर अपान R स्क्वायर से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट दिए थे, ये मेन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ये बोहर का मॉडल। नाउ ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ समझा रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है CBSE वालों को और MP बोर्ड वालों को, ये सीरीज़ लिखने भी आती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये ड्राइव करते हैं एनर्जी लेवल, तो वहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, न्यू निकालेंगे, तो EN माइनस EP अपान क्या जाएगा, H, बिकॉज अभी हमने लिखा था कि EN माइनस EP इज इक्वल टू H न्यू, क्योंकि nth लेवल से P लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है, तो EM वेव जनरेट हो रही है। अगर हम निकालते हैं EP तो माइनस RCH अपान P स्क्वायर, R क्या है यहाँ पर, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है एक बार पूछी गई एक नंबर में, तो आपको याद रखना है R इज इक्वल टू 1.1 10⁻⁷ पर मीटर यहाँ पर है। तो अगर हम वेवलेंथ निकालने जाते हैं इसी से, तो 1 अपान लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C अपान लैम्डा, सो 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपान P स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। तो इसके बेस पर जो है हाइड्रोजन एटम की बोहर्स मॉडल पर बोहर ने निकाली, वो 5 सीरीज निकाली। सबसे पहले निकाली लाइमन सीरीज। अगर P की वैल्यू 1 है हमारे पास और N की वैल्यू 2 है, तो इस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। और इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ N इज इक्वल टू 2 पर आपको 1215 एंगस्ट्रॉन्ग मिलेगी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ N इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपको 910 मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वो। फिर ये पूछेंगे ये सीरीज कौन से रीजन में ऑब्टेन होती है, तो ये जो सीरीज है हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्टेन होगी, UV रीजन में। फिर सेकंड सीरीज होती है बाल्मेर सीरीज, रिस्पेक्टिवली इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए, P इज इक्वल टू 2 N इज इक्वल टू 3 है। तो ये हमारी सीरीज जो है वो बाल्मेर है, और बाल्मेर जो है वो विजिबल रीजन में मिलेगी, है ना। और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी 6563 एंगस्ट्रॉन्ग, और शॉर्टेस्ट जो होगी वो N इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगी 3646 एंगस्ट्रॉन्ग में। एक और मेन बात यहाँ याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं वो, और आया भी है कि वो कौन सी सीरीज जिसमें रंग ऑब्टेन होते हैं, कलर्स ऑब्टेन होते हैं, तो वो है आपकी बाल्मेर। इसमें रेड कलर, राइट, फिर ग्रीन कलर और ब्लू कलर जो है वो इसमें ऑब्टेन होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे पास्चियन, P इक्वल टू 3 N इज इक्वल टू 4 है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी 18,751 में मिलेगी, और शॉर्टेस्ट N इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 8,107। फिर ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि पास्चियन जो है वो कहाँ ऑब्टेन होगी, तो ये इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेन होगी। फिर चौथी सीरीज आती है इसमें ब्रैकेट, P इक्वल टू 4 N इज इक्वल टू 5 अगर हम लेते हैं, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको 40,500 एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो ऑब्टेन होती है, और शॉर्टेस्ट N इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 14,516, और ब्रैकेट जो है आपको फार इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेन होगी। और लास्ट है आपकी फंड सीरीज, P इक्वल टू 5 लेंगे, N इज इक्वल टू 6 लेंगे, है ना। तो ये फार इंफ्रारेड में फंड सीरीज आपको मिलेगी, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है
n इज इक्वल टू 6 पर 74,000 और शॉर्टेस्ट है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 22,700 मिलेगी आपको। और जो एनर्जी है वो आपकी ग्राउंड लेवल की एनर्जी रहेगी E माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जाएंगे तो 10.2 और 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगी। तो इसे ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए या मेन क्वांटम नंबर के लिए ये पूछा जाता है। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में।